हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 14th of March 2017 and Nifty has opened with a massive gap up opening of about 150 points or so, right? ये आप गैप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक and it has touched its lifetime high and अभी भी इसका कोई मूड खास मुझे नीचे जाने का दिखता नहीं है, बट ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी क्योंकि लोगों को all the stocks have opened majorly high and I'm sure they will be people will be booking their profits. So थोड़ा cautious होके बैठिए, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं क्या होता है ना। जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, जिन्होंने फ्राइडे को लॉन्ग किया होगा निफ्टी को या किसी भी स्टॉक को बाई किया होगा, उनके लिए तो आज बहुत अच्छा दिन था, बट जिन्होंने नहीं किया है उनको वेट एंड वॉच करना है. They'll have to wait for right signals to appear. And when they appear, then only you have to do something. So, ये निफ्टी है, राइट. निफ्टी वी न्यू दैट अगर यूपी का अगर इलेक्शन जीतेगी बीजेपी तो निफ्टी ऊपर ही खुलेगी, बट वी वर नॉट श्योर एज द एग्जिट पोल हैपेंड ऑन 10th and 11th को फिर रिजल्ट आए थे. सो एनीवे, नाउ ऑन दिस वीकेंड व्हाट आई हैव डन, आई हैव फाउंड फॉर यू पीपल 4-5 स्टॉक्स. एक फ्यूचर का स्टॉक है और बाकी 4 investment purpose के stocks हैं. So the first stock that I'm going to talk about is Kotak Bank, right? Kotak Bank is right now on my radar. Like the way I gave you Reliance Infra and the way I gave you, Just Dial, this is of the same category stock, right? Now, I believe if Nifty goes up, you have to keep the words in mind. If Nifty goes up, this stock has a potential to go up quite a lot. Like let's see its 1-day graph. ये इसका 1-day का graph है, right? It has just crossed its lifetime high, which is right now it's at the lifetime high. ये देखिए, इसका high था, मतलब ये था 831.7. Right now it's just little above that. और ये इसका 1-day का graph है. इसमें ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है और ये 10 मूविंग एवरेज है. 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को अबाउट टू क्रॉस है. कैंडल्स आर अबव. ऑफ कोर्स MACD इज इन द पॉजिटिव रीजन एंड RSI इज अबव 60, राइट. ये सारे हमको बहुत इसके प्रॉमिसिंग पैरामीटर्स लग रहे हैं. लाइक आई फील दे शुड गिव अस गुड रिटर्न. सो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है. एंड द सेकेंड थिंग दैट इज really made me decide about this particular stock is that I saw massive buying coming by the foreign investors in this particular stock. Last couple of weeks में big foreign investors have bought this stock. So if Nifty goes up, it doesn't drastically go down. This stock has a potential to go up, right? So that was one stock that I identified for you. And I'm hoping it should give good returns. And many of you keep asking me that iska target dijiye, iska stop loss. No, I am teaching you people. I am not giving you tips. You have to learn and you have to analyze yourself. In a day I get at least 100 emails and at least 200 to 300 texts and like on this tune. And I told you I'm right now single-handedly managing everything, right? I have to have a setup so that all your queries can be answered. So I request you people to please, learn yourself by going through my videos again and again. I will not be able to give so many answers. I get very distracted otherwise. I'll not be able to concentrate on finding out good stocks. So now you people have to learn and you have to take a call. कहाँ पे आप लोग करते आ रहे हैं, जो लोग नहीं करते आ रहे हैं, what I'm planning from April onwards, we will have a training program for them. Those who want to learn how to enter, exit, ग्राफ को कैसे एनालाइज करना है, बिल्कुल बेसिक्स. एक वो होगा और एक थोड़ा सा एडवांस्ड होगा. 2 कोर्सेज आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट. एंड थर्ड, अपने आप करिए. 1-2 बार गलत होगा, तीसरी बार सही होगा, राइट. keep trying and I'm sure you will find the right path. Stock market is all about experience. It's not about, somebody told and you entered. It's about experiencing everything. Sometime loss, sometime gain. You have to experience both. But
with each experience you learn something and you decide your rules from there कि मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा, right? तो आप लोग प्लीज मुझे भेजने से ना, आई विल नॉट बी एबल टू सी so many of them, all right, but learn. So when I start the teaching program, then I can take up your, like in a group of, let's say, a few people, I can take up your, how do you analyze a particular graph, all right? So one question that you people have asked me कि uncharted territory का मतलब क्या है, कि ये कहीं भी चला जाएगा. It's not that, it's not that कि अगर ये आज स्टॉक कोटक महिंद्रा का 841 है तो ये 2000 पे रुकेगा जाके, because see every stock has a वर्थ, उतनी वर्थ तक जाएगा, ये उससे ऊपर नहीं जाएगा, राइट? जैसे हम जस्ट डायल का ग्राफ लेते हैं, सो जस्ट डायल का ग्राफ लेते हैं तो ये मतलब ये अनचार्टेड टेरिटरी में था, यहाँ से था ये अनचार्टेड टेरिटरी में, बट इसको भी ब्रेक लगेगा, कहीं ना कहीं तो लगेगा. देखिए एक ब्रेक तो यहाँ पे दिख रहा है, 876 पे लगेगा, एक हो सकता है यहाँ पे लगे, एक हो सकता है यहाँ पे लगे, राइट? जहां पे ये आपको थोड़ा सा स्टैग्नेशन दिखाई देगा ना ग्राफ में, वो एरियाज होते हैं, वहां पे इसको रेजिस्टेंस लगता है, राइट? तो यू हैव टू कीप ऑन आइडेंटिफाइंग, एंड द बेस्ट व्हाई आई सेड दैट इट गोज इन द अनचार्टेड टेरिटरी, क्योंकि ये 10 मूविंग एवरेज को जब कैंडल्स टच नहीं करेंगी ना, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये टच करेंगी, पहले तो ये जाके टच करेंगी 10 मूविंग एवरेज को, फिर उसके बाद ऊपर या नीचे जाने का डिसाइड करेंगी. सो यू विल हैव एम्पल टाइम टू टेक अ कॉल कि आप उसमें रहो, उस स्टॉक में रहो या उस स्टॉक से बाहर निकल जाओ. दैट इज व्हाई आई से अनचार्टेड टेरिटरी. दैट इज व्हाई आई से कि फ्री फॉल मतलब जैसे ये फ्री फॉल में है, आपको इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है ना, आपको कैंडल्स बिल्कुल नीचे नीचे चल रही है, जब इसने छोड़ा तो आप एग्जिट कर जाइए, फिर रेजिस्टेंस लगा फिर आप नीचे नीचे चल दीजिए, राइट? दिस काइंड ऑफ अ ट्रेड इज वेरी सेफ. दैट इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल व्हेन आई से uncharted territory, and that is what I say when I say free fall, right? So ये free fall है, ये uncharted territory है, तो आप but be careful about your stop losses. जैसे आप free fall में भी है, तो यहाँ पे जैसे आप ये क्रॉस हो गया, आप यहाँ पे है तो ये अपना stop loss रखिए, ये क्रॉस हो गया और आप यहाँ पे है तो अपना यहाँ stop loss रखिए, आप यहाँ पे है तो ये अपना stop loss रखिए. Keep modifying your stop loss, right? That is what. But these trades are very safe, very, very safe, much safer than any other trade that you do for a point or 2 point. Okay, so that was this. That was about talking about how do you put your stop losses and analyze. And ये जो आपकी 50 moving average है ना, ये आपको अच्छे से stop loss देती रहती है, जहाँ पे ये है वहाँ पे आप stop loss रखिए, साथ साथ अगर चल रहे हैं तो. Then we come to, मैंने आप इस वीकेंड पे बैठ के 50 आप लोगों के लिए स्टॉक्स निकाले और उनमें से फिर फिल्टर कर करके मैंने आपके लिए 3 स्टॉक्स निकाले हैं जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. आई प्लान टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ, क्योंकि निफ्टी इज एट द लाइफ टाइम हाई, ठीक है? तो इसका मतलब 100 पॉइंट्स या 9200 तक जाके फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, जब ये नीचे आएगी, जब भी नीचे आएगी उसके बाद हम अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, ठीक है, राइट? सो आई शो यू द 3 stocks that I have taken out for you. One is IndoCount, right? IndoCount is basically a company which deals with making cloth, मतलब बेड शीट्स हैं और लेनिन है और मतलब, और ये एक्सपोर्ट करते हैं, मैसिवली एक्सपोर्ट करते हैं. ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है और ये 10 मूविंग एवरेज है. 10 मूविंग एवरेज 200 को ऑलरेडी 50 ने क्रॉस कर रखा है, 10 मूविंग अबाउट टू क्रॉस है, ठीक है? ये इसका 1 डे का ग्राफ है. MACD क्रॉस हो चुका है, RSI इज अबाउट टू बी देयर एट क्रॉसिंग 60, ठीक है? So this is what really attracted me, and but the most important about this was when I saw its fundamentals. So I saw its fundamentals in moneycontrol.com. moneycontrol.com पे मैंने इसके fundamentals लगा रखे हैं और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है. और जो ओनर्स है, तो promoters का stake is about 59%, right? Which is very, very good. Then there are about 20 mutual funds which have invested in it. Then there are financial institutions and banks, 9 of them have invested. And these are qualified foreign investors. See the amount of quantity they have purchased. This.
ये है म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट, ये बैंक्स की है और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की है. सो द टोटल नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स आर बेसिकली अबाउट 83, मतलब म्यूचुअल पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है. नाउ आई वांट टू शो यू म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग. ये म्यूचुअल फंड होल्डिंग है. आप देखिए पूरा ग्रीन से ही डोमिनेटेड है. दिस स्पेस which is this current quarter that is going on, December 2016 onwards, सारा ब्लू है. उससे पहले जून में ये सारा रेड था, आप देख रहे हैं, राइट. रेड मीन्स पीपल आर रिलीविंग, कमिंग आउट ऑफ देयर स्टॉक, selling the stock, and this means they are buying the stock, right? So it's dominated by green. And if you look into its fundamentals, I want you people to do the analysis yourself from screener.in and find out how are the fundamentals, right? So this was one. Then the second one that I found for you is Manappuram, right? ये मनापुरम है. ये मनापुरम का ग्राफ है, ऊपर से गिरते गिरते यहाँ पे आया है और अब हो सकता है ये थोड़ा सा सपोर्ट ले, राइट. ये 200 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज ने उसके ऊपर से सपोर्ट लिया. अगर ये गिर के थोड़ा और नीचे आएगा और फिर ऊपर चलने लगेगा, देन दैट विल बी आवर बाइंग जोन. The third script that I found for you is South Indian Bank, right? ये South Indian Bank है. They have a huge market cap, and आप इसके भी आप screener.in से आप अपने fundamentals इसके एनालाइज कर सकते हैं. और ये इसका ग्राफ है, right? ये 200 मूविंग एवरेज है, 50 and 10. Whenever these two cross this 200 moving average, then we will be in the buying zone. MACD नीचे से ऊपर क्रॉस कर रही है, RSI above 44 है, rather 40 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है. तो we will keep these three stocks on our radar and we will see what's happening. So these were a few, and मैंने आपको उस दिन भी कुछ बताए थे, जिसमें वोल्टास था, एक था उसमें मवाना शुगर था, which was also really doing very very well, मवाना शुगर. And UCO Bank is also doing well, right? Even Colgate Palmolive is doing well. And then, so like if you will do correct analysis, you will never falter. Your trades will be correct, and you will be able to earn money, right? But patience के साथ अपनी ट्रेड लीजिए और पूरी एक अपनी चेकलिस्ट बनाइए. निफ्टी आप कंसोलिडेट हो रही है, नीचे जा रही है, उसके बाद आप देखिए कि आपके स्टॉक्स के क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या उसके ये है टेक्निकल्स क्या है, सारे पैरामीटर्स टेक्निकल्स के क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. इफ दे आर हैपनिंग देन ओनली यू बाय इट, अदरवाइज प्लीज डोंट बाय. सो एंड जो भी अगर आपको जैसे आपने स्टॉक्स ढूंढे उनमें से कोई एक बहुत पसंद आ जाता है, उसकी पूरी एनालिसिस करिए मार्केट में से. इकोनॉमिक्स टाइम्स पे जाइए, आप मार्केट डॉट मनी कंट्रोल पे जाइए, आप स्क्रीनर पे जाइए और इसकी सारी जो पॉसिबल इसके बारे में न्यूज़ है उसको एनालाइज करिए. डिविडेंड देखिए कितना मिलता है, इसका बोनस कब डिक्लेयर हुआ था, पी रेशो क्या है, वो सब आप देखिए. एंड मैं ये सारी सब कुछ एनालिसिस के बाद मैंने आपके लिए कोटक बैंक निकाला है और ये 3 मैंने आपके लिए स्टॉक्स निकाले हैं. So guys, before you make a position, please analyze your trade, right? I have bought one lot of Kotak Mahindra Bank and you can take a call. Your choice, but please don't buy because I have bought it. You buy with your own choice. All the best guys. All the best guys. Keep learning. अपने trade खुद analyze करना सीखिए. And otherwise, when I start with a training program, you can definitely join in. All the best.